Hello students, welcome back. In this video we are going to cover the two topics, that is slide master and animation and transition. This is the last part of this unit 5 digital presentation. So first we have is slide master. Slide master is basically the pre-designed samples जिन्हें आप templates भी कहते हैं, जिनके different colors रहते हैं, fonts रहते हैं, जिसकी help से you can create the slides beautifully. To use the slide master, we have the options. Click on master slides icon in the sidebar. LibreOffice Impress के साइड में जो master slide का icon होता है, हम वहाँ से इसे यूज़ कर सकते हैं. और we have a different option that we can go to the slide menu and from there we can click on change slide master option. दोनों options को select करने के बाद आप कोई भी desired master slide जो आपको required हो from the available option you can choose and you can use it in your slide. So here we have our slide. So here we have the master slide. इसका icon हमारा रहता है at the sidebar. That is this blue color icon which you see here. You can click on this one. यहाँ पे देखिए used in this presentation, recently used and available for use. तीन चीज़ें आ रही हैं. Used in presentation के अंदर वो templates हैं जो हम presentation के अंदर already use कर रहे हैं. Recently used जो हमने कभी पहले use किए थे और new that is available for use आप इनमें से कोई भी ले सकते हैं. Suppose we take this one. Now this one has a particular font. As soon as you click on this one, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे ये आपकी स्लाइड के ऊपर आ जाएगा जो भी आपकी स्लाइड सेलेक्टेड होगी. The name of this template or you can say this master slide is sunset and इसके अंदर आप कुछ भी अपना टेक्स्ट डाल सकते हैं. Like we can write my presentation. इस तरह से यहाँ पे आप अपने टेक्स्ट को डाल सकते हैं. You can insert all these things in this slide. Same way you can change the template or the master slide if you want to. This makes our slide look a little beautiful. Similarly, इसी ऑप्शन को करने के लिए आपके पास एक दूसरा मेथड भी है. Let us close this one first. Go to the slide menu. यहाँ से आपको चूज करना है ऑप्शन Change Slide Master. Change Slide Master पे क्लिक करने पे अभी जो हमने पहले लिए हुए थे that it is showing. आप इनमें से भी ले सकते हो. अगर आप पहले वाला लेना चाहते हो you can click on this one and click on OK. Otherwise you can click on this load button. और जैसे ही आप लॉट बटन पे क्लिक करते हैं आपके पास कैटेगरीज आती हैं. कैटेगरी के अंदर डिफरेंट टैम्पलेट्स रहते हैं. ड्रॉ, मीडिया विकी, अदर बिजनेस डॉक्यूमेंट्स, प्रेजेंटेशंस. अब प्रेजेंटेशन कैटेगरी के अंदर हमारे पास बहुत सारे टैम्पलेट्स हैं. तो इनमें से हम जो भी लेना चाहते हैं वी कैन क्लिक ऑन दिस वन. इफ़ यू वांट टू चेक द प्रीव्यू यू कैन जस्ट क्लिक हियर और यहाँ से आप इसके प्रीव्यू को भी चेक कर सकते हो. लाइट्स, लश ग्रीन, मेट्रोपोलिस, साइड बाय साइड you can check कि आपको यहाँ पे कौन सा लेना है. Whichever is the desired one, you can just click on this one and click on OK. That master slide will be applied. After clicking on that OK, वो आपके इसमें आ जाएगा. यहाँ से आप इसे select करके OK कर देंगे. वो आपकी selected slide में move on हो जाएगा. इसी तरह से आप दूसरी slide को भी select करके उसे master slide apply कर सकते हैं. The next option is adding the animations. So basically animations क्या होती हैं? These are the set of effects which can be applied on different objects in a slide. एक slide के अंदर different objects हो सकते हैं, text हो सकते हैं, tables हो सकता है, images हो सकती हैं. तो जो भी उनके ऊपर effects लगाते हैं they are known as animations. सबसे पहले हम उस object को select करेंगे जिस पर हमें animation को apply करना है. It can be a table, text or image. Next is in the sidebar select the animation icon. Above, just above the slide master icon we have the animation icon in the form of a star shape. आपको उसे सेलेक्ट करना है. देन क्लिक ऑन द एड इफेक्ट ऑप्शन. एड इफेक्ट ऑप्शन पे क्लिक करना है किस टाइप का इफेक्ट चाहिए. देन चूज द डिजायर्ड इफेक्ट फ्रॉम द डिफरेंट कैटेगरीज. जो भी आप इफेक्ट चूज करेंगे, एम्फेसिस, मोशन, एग्जिट, एंट्रेंस, हर इफेक्ट के अंदर डिफरेंट कैटेगरीज हैं. आप उसमें से कोई भी एक इफेक्ट चूज कर सकते हैं एंड देन यू कैन जस्ट अप्लाई दैट इफेक्ट ऑन द पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट. लाइक हियर आई हैव माई दिस. If I write here anything, we are learning Impress. हमने यहाँ से इसमें कोई पिक्चर भी इंसर्ट कर दी. सपोज इंसर्ट इमेज. अब हम इसके अंदर डिफरेंट थिंग्स को चेंज करना चाहते हैं. लाइक हियर इट इज़ आर अ लिटिल स्मॉल, दैट इज़ वाई हमारी पिक्चर बॉक्स हमारा स्मॉल है, इसलिए हमारी जो पिक्चर है
वो इसमें पूरा फिट नहीं हो पा रही है. So we can increase or decrease the size of this one. So we can take the picture from here, gallery option also. This is the gallery. Choose any picture from here and apply it on the slide. Suppose हमने ये ले लिया. अब हमें डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के ऊपर इसके अंदर एनिमेशन लगानी है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल सेलेक्ट दिस. लाइक हम माई प्रेजेंटेशन के ऊपर लगाना चाहते हैं, तो यहाँ से हम जाएंगे एनिमेशन ऑप्शन पे फ्रॉम द साइड बार. क्लिक ऑन दिस वन. माई प्रेजेंटेशन टेक्स्ट इज सेलेक्टेड. इसके बाद आपको इस प्लस आइकन पे क्लिक करना है एंड इट विल शो यू डिफरेंट कैटेगरीज. एंट्रेंस, एम्फेसिस, एग्जिट, मोशन पाथ, मिसलेनियस इफेक्ट. जो भी आप लेना चाहते हो आप उस पर सेलेक्ट करो और यहाँ पे आपके पास डिफरेंट इफेक्ट्स हैं. इन इफेक्ट्स में से आप कोई भी एक सेलेक्ट कर सकते हैं. इट विल शो यू दैट इफेक्ट हियर. यू कैन सी हियर. दोबारा से इसको आप प्ले करके देख सकते हो. इसके ऊपर एंट्रेंस इफेक्ट है. इफ यू विल क्लिक ऑन प्ले तो आप यहाँ पे देख रहे हो माई प्रेजेंटेशन इस फॉर्म में आ रहा है. आप चाहें तो इसे चेंज भी कर सकते हैं. क्लिक ऑन दिस डिसॉल्व इन. नाउ यू कैन सी द इफेक्ट हाउ इट इज कमिंग. प्ले. So it is coming like this. Speed is a little fast. If you want to make some changes, you can do in this way. Like इसकी जो duration है आप उसे वहाँ से बढ़ा सकते हो. But for that your effect should be selected. इसी तरह से आपको कितना delay देना है वो आप increase और decrease कर सकते हैं this way. And you can change this option कि start आपको click पे करना है या previous slide के साथ करना है या उसके बाद करना है. So this is the way you can make the changes. ओके. आफ्टर दैट यू कैन क्लिक ऑन दिस प्ले बटन टू चेक ये किस तरह से हमारा आता है. ठीक है. इसके बाद इसी तरह से हम ये जो हमारी इमेज है इसके ऊपर भी लगा सकते हैं. वी कैन चेंज द कैटेगरी फ्रॉम हियर. हमने इसको सेलेक्ट किया. हम यहाँ से जाते हैं अपने ऑप्शन के ऊपर. प्लस पे आपको क्लिक करना है. जो भी आप ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करते हो उसके लिए आपको इस प्लस साइन पे क्लिक करना है. इसमें ऑलरेडी प्लस साइन पे क्लिक था इसलिए इसने इसकी कैटेगरी को दिखा दिया. यहाँ से आपने कैटेगरी को चूज़ किया. जैसे हम एग्जिट चूज़ कर लेते हैं और यहाँ पे हमारे पास इफेक्ट है वेनेटियन ब्लाइंड्स. तो हमने इसको चूज़ किया. अब आप इसे प्ले करके देखो किस तरह से ये प्ले हो रहा है. यू कैन क्लिक ऑन दिस वन प्ले एंड यू कैन सी हियर दिस वे इट विल मूव. राइट. सो दिस इज द वे यू कैन क्रिएट द एनिमेशन ऑन डिफरेंट स्लाइड्स. इसके बाद बात आती है हमारी ट्रांजिशन की. व्हेन वी टॉक अबाउट ट्रांजिशन हमारा वो इफेक्ट होता है जब हम एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड की तरफ मूव करते हैं. ट्रांजिशन इज एन इफेक्ट when one slide changes to another. In the sidebar, select the slide transition icon. इस आइकन को हमें सेलेक्ट करना है. Select the slide to apply the transition. उस स्लाइड को हम सेलेक्ट करेंगे जिसको हमें ट्रांजिशन लगाना है. Then you can change the variant, duration and sound of transition from the modify transition section. साइड से रिलेटेड अगर हम उसकी ड्यूरेशन कितनी देर वो आए ट्रांजिशन उसे चेंज करना चाहते हैं, उसमें साउंड ऐड करना चाहते हैं या उसके वेरिएंट में चेंजेस करना चाहते हैं लाइक कलर डिफरेंस, तो उसे हम मॉडिफाई ट्रांजिशन सेक्शन से चेंज कर सकते हैं. और अगर हमें सेम ट्रांजिशन सभी स्लाइड्स में लगानी है वी कैन क्लिक ऑन अप्लाई टू ऑल स्लाइड्स बटन. सो हेयर वी हैव माई प्रेजेंटेशन. लेट अस गो टू द फर्स्ट स्लाइड. हम यहाँ गए और यहाँ पे हमें ट्रांजिशन ऐड करना है. दिस इज माई स्लाइड ट्रांजिशन ऑप्शन. द साइड बार क्लिक ऑन दिस वन. यहाँ पे आपको स्लाइड ट्रांजिशन के डिफरेंट ऑप्शन दिखाएगा. आप इनमें से कोई भी एक ऑप्शन ले लो. जैसे आपने लिया सपोज पुश, तो देख रहे हो यहाँ पे ट्रांजिशन अप्लाई हो रहा है, ऊपर से आ गया. इसी तरह से इफ यू वांट टू चेंज यू कैन डू दिस वन कवर और यू कैन डू दिस वन डिसॉल्व. लाइक दिस द ट्रांजिशन विल चेंज और ये हमारा पूरी स्लाइड पे लगता है. अब इसके जो वेरिएंट्स हैं इसमें क्या होता है, अब जैसे मॉडिफाई ट्रांजिशन के सेक्शन है इसके अंदर वेरिएंट, ड्यूरेशन और साउंड हो गया. तो वेरिएंट मतलब उसी के डिफरेंट फॉर्म्स हो गई. किसी में कलर से रिलेटेड होता है, किसी में आपके मोशन से रिलेटेड होता है. तो वेरिएंट अब ये हमारा कैसा आ रहा है, अगर हम इसे प्ले करके देखें सो इट इज़ कमिंग इन द हॉरिजॉन्टल फॉर्म. तो हम चाहें तो इसे वर्टिकल फॉर्म में भी कर सकते हैं. सो दिस इज़ द वेरिएंट. अब इसकी ड्यूरेशन यहाँ पे 2 सेकेंड्स है. यू कैन इंक्रीज द ड्यूरेशन, यू कैन डिक्रीज द ड्यूरेशन फॉर दिस थिंग. ओके. सो अगर आप इंक्रीज करते हैं तो वो थोड़ा सा लेट आएगा, डिक्रीज करते हैं तो थोड़ा सा जल्दी आएगा. साउंड में जाके आप कोई साउंड ऐड कर सकते हैं. डिफरेंट साउंड्स आर देयर. साउंड नहीं चाहिए तो यू कैन क्लिक ऑन द नो साउंड ऑप्शन. इफ यू क्लिक ऑन दिस क्लिंग साउंड you can see here the sound is coming. Okay. And similarly there are options of advanced slide कि आपको जो नेक्स्ट स्लाइड चाहिए वो माउस क्लिक पे चाहिए या अपने आप आफ्टर सम सेकेंड्स इट शुड कम.
so we want it after suppose 2 seconds or 3 seconds, we can do this. अब हमने फर्स्ट के ऊपर जो अप्लाई किया है दैट इज़ आर कॉम ट्रांजिशन. अब हम सेकंड स्लाइड पे जाते हैं और यहाँ से हम अप्लाई कर देते हैं सपोज स्टाइल्स. और आप देखेंगे कि जिस भी स्लाइड के ऊपर हमने ट्रांजिशन अप्लाई किया है उस स्लाइड के लेफ्ट साइड में इस तरह से स्टार बना हुआ आ जाता है. ठीक है, सो इट शोज दैट ट्रांजिशन हैज़ बीन अप्लाइड ऑन दिस स्लाइड. तो अगर आप इसे प्ले करके देखो फर्स्ट को एंड देन सेकंड को, फिर क्लिक ऑन दिस प्ले ऑप्शन, देखो इस तरह से आ रहा है. इसमें हमने साउंड भी लगाई थी. सेकंड को अगर प्ले करके देखें तो इसमें हमने साउंड नहीं लगाई थी, सिर्फ हमने इफेक्ट लगाया. अब इसके अंदर वेरिएंट नहीं है इसलिए इट इज़ नॉट शोइंग. कुछ हमारे ट्रांजिशंस होते हैं जिसमें वेरिएंट्स होते हैं और कुछ होते हैं जिसमें कि हमारे वेरिएंट्स नहीं होते. अगर आप इसमें भी ऑटोमेटिकली आफ्टर कर देते हैं तो आपको माउस से क्लिक नहीं करना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली इट विल मूव ऑन. इसे हम स्लाइड शो करके चेक कर लेते हैं. क्लिक ऑन स्लाइड शो, स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट स्लाइड. नाउ इट इज़ कमिंग ऑन इट्स ओन. इसके बाद जो नेक्स्ट स्लाइड आएगी वो भी जस्ट 1 सेकेंड के बाद आपकी आ जाएगी. Here we have not pressed the mouse button. So this way we can apply the animation and transition on this slide, and we can apply the master slide. I hope you have understood the topic. In case any doubt is there in any of the topic, you can ask me in the comment section. I will meet you in my next video. If this video has helped you, don't forget to like, share and subscribe. Thank you.